السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ اور کھیلوں کی تمام تر خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیہ نذیر۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کپتان سرفراز احمد اور ہیڈ کوچ مکی آرتھر سے مشاورت کے بعد قومی ٹیم کا اعلان کیا اور آسٹریلیا کو T20 سیریز میں کلین سویپ کرنے والی ٹیم کو برقرار رکھا گیا۔ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے آسٹریلیا کے خلاف اعلان کردہ T20 اسکواڈ برقرار رکھا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 31 اکتوبر سے ہوگا۔ سیریز کا دوسرا میچ 2 نومبر جبکہ تیسرا اور آخری T20 میچ 4 نومبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلی جائیں گی۔ کیویز کے خلاف پاکستان T20 اسکواڈ میں کپتان سرفراز احمد، اوپنر فخر زمان، محمد حفیظ، صاحبزادہ فرحان، بابر اعظم، شعیب ملک، آصف علی، حسین طلعت، شاداب خان، شاہین آفریدی، عثمان خان شنواری، حسن علی، عماد وسیم، وقاص محسود اور فہیم اشرف شامل ہیں۔ خیال رہے کہ T20 میچز میں قومی ٹیم کی بہترین کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے اور آسٹریلیا کے خلاف حالیہ سیریز میں پاکستانی ٹیم نے کلین سویپ کیا تھا۔ میچوں کی اس سیریز میں پاکستان نے نہ صرف کلین سویپ کیا بلکہ لگاتار 10ویں T20 سیریز میں فتح بھی اپنے نام کی۔ اور اگر نیوزی لینڈ کے خلاف بھی پاکستان اسی تسلسل کو برقرار رکھتا ہے تو یہ قومی ٹیم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ کینگروز کو کلین سویپ کرنے والی قومی ٹیم میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ ابوظہبی میں کل پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے کھیلا جائے گا۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے بابر اعظم کی، جو تیسری بار T20 کے عالمی نمبر 1 بلے باز بن گئے۔ کینگروز کے خلاف سیریز میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بابر اعظم 2 درجے ترقی پاتے ہوئے عالمی T20 رینکنگ میں سر فہرست آ گئے۔ آسٹریلیا کے خلاف اب بات کریں گے بابر اعظم کی، جو تیسری بار T20 کے عالمی نمبر 1 بلے باز بن گئے۔ کینگروز کے خلاف سیریز میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بابر اعظم 2 درجے ترقی پاتے ہوئے عالمی T20 رینکنگ میں سر فہرست آ گئے۔ آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار پانے والے پاکستان کے مایہ ناز بلے باز بابر اعظم تیسری بار اس فارمیٹ میں دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی بن گئے۔ بابر اعظم نے کینگروز کے خلاف 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز میں کل 163 رنز بنائے اور آسٹریلوی کپتان ایرون فنچ کو عالمی کرکٹ کونسل ICC کی رینکنگ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ رینکنگ میں تیسری بار پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بابر اعظم نے 844 پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں۔ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود ایرون فنچ کے 839 جبکہ بھارت کے لوکیش راہل 812 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تازہ T20 رینکنگ میں پاکستان کے دوسرے اوپنر فخر زمان 5ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ واضح رہے کہ رواں سال جنوری میں بابر اعظم پہلی بار T20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر براجمان ہوئے تھے۔ ان کی شاندار کارکردگی نے پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں 1-2 سے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور بابر اعظم نے 3 میچز میں 109 رن بنائے تھے۔ بعد ازاں اپریل میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں 0-3 سے کلین سویپ کیا، جس میں بابر اعظم نے 165 رنز بنائے تھے۔ باؤلنگ رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان پہلے اور پاکستان کے شاداب خان دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ 1 سال بعد قومی ٹیم میں واپسی کرنے والے عماد وسیم نے آسٹریلیا کے خلاف زبردست پرفارمنس دکھائی اور 10ویں نمبر پر آ گئے۔
जबकि फ़हीम अशरफ 16वें, हसन अली 21वें नंबर पर मौजूद हैं। टीम रैंकिंग में 136 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। जी नाज़रीन, बाबर आजम के बाद अब बात करेंगे पाकिस्तानी स्टार शुएब मलिक की, जिन्होंने T20 में 45 कैचेस थाम कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी ऑलराउंडर शुएब मलिक T20 इंटरनेशनल मैचों में 45 कैचेस पकड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। UAE में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 अक्टूबर को शेड्यूल मैच के दौरान शुएब मलिक ने मजमूई तौर पर 3 कैचेस पकड़े। उन्होंने मैच के दौरान मार्क शार्ट और मैक्सवेल के कैचेस थाम कर यह एजाज़ हासिल किया। उन्होंने ये एजाज़ 105 मैचेस में हासिल किया। और दूसरी जानिब टेनिस और क्रिकेट की शानदार जोड़ी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। कौमी टीम के क्रिकेटर शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के यहाँ 800 बेटे की पैदाइश हुई, जिसका ऐलान खुद शुएब मलिक ने ट्विटर पर किया। क्रिकेटर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो ये बताते हुए बहुत पुरजोश हैं कि उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट में मदाहों की दुआओं और नेक तमन्नाओं का भी शुक्रिया अदा किया। और यही वजह है कि क्रिकेटर शुएब मलिक न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में शिरकत मशकूक हो गई है। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाते हुए मसरूफ़ ऑलराउंडर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में शिरकत का फ़िलहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। शुएब मलिक ने इस हवाले से सूरत हाल आज शाम तक वाज़े करने का कहा था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मुकाबला कल अबू धाबी में होगा। इससे कबल अहलिया सानिया मिर्ज़ा के साथ मौजूद होने की वजह से शुएब मलिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज़ में भी स्क्वाड को ताख़ीर से ज्वाइन किया था और वो पहले मैच से एक रोज़ कबल हैदराबाद से UAE पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस में शिरकत के बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। जी नाज़रीन, बाबर आजम और शुएब मलिक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने जिस्मानी थकावट और एतमाद से महरूमी को अपनी नाकामी की असल वजह गर्दानते हुए कहा है कि मैचों के दौरान मुतवातर कारकर्दगी ना दिखाने पर मायूसी बढ़ने लगती है। कौमी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर के मुताबिक एतमाद का फुकदान उनके जवाल का बाइस बना और वो तीनों फॉर्मेट्स में शिरकत से महरूम हो गए। 26 साला फास्ट बॉलर का कहना था कि 5 साला पाबंदी के बाद 2016 में जब उनकी टीम में वापसी हुई तो उनका जिस्म वनडे क्रिकेट की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें एतमाद से महरूमी का एहसास होने लगा। उनका कहना था कि पेशावर क्रिकेटर के तौर पर अगर कोई परफॉर्म ना कर सके तो इसका एतमाद बुरी तरह मजरूह होता है, लेकिन मुसलसल नाकामी से मायूसी बढ़ने लगती है और जहनी एतबार से एतमाद की महरूमी मजमूई कारकर्दगी को मुतासिर करती है। ख़राब परफॉर्मेंस के बायस टीम से बाहर होने वाले मोहम्मद आमिर को इससे कबल एक टेस्ट मैच में ही बाहर बैठना पड़ा, लेकिन वनडे क्रिकेट में मुसलसल नाकामी ने उनके आदाद शुमार को बुरी तरह मुतासिर किया और बाएं हाथ के फास्ट बॉलर का ख्याल है कि उन्हें जहनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से मुश्किलात का सामना रहा। लिहाजा उन्होंने मुसलसल 3 साल तक लगातार क्रिकेट खेलने के बाद आराम का फैसला किया, लेकिन अब उनका डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से खोया हुआ रिदम वापिस आ रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फिक्सिंग स्कैंडल की। जस्टिस रिटायर्ड कयूम मलिक ने फिक्सिंग के हवाले से अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल करार दे दिया। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने क्रिकेट कमेटी का ऐलान करते हुए वसीम अकरम को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जिन निज़ामत का जिक्र किया गया है उसके हवाले से बादशाह तफसीलात जारी नहीं की गई। चेयरमैन बोर्ड ने इस बयान से यह तासुर उभरा था कि शायद जस्टिस कयूम रिपोर्ट नामुकम्मल थी। इस बारे में बात करते हुए साबिक जज ने कहा कि इसी रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर्स पर पाबंदियां लगी थीं और जुर्माने आयद किए गए थे। अगर नामुकम्मल होती तो वो क्रिकेटर्स पर पाबंदी की मुद्दत कैसे पूरी करते और जुर्माने कैसे अदा करते। मुझे नहीं मालूम कि एहसान मानी साहब ने ये रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं। अगर उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो शायद वो ये बात ना कहते। जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम का कहना था कि तहकीकात हाई कोर्ट की सतह पर हुई थी, ताहम ये इंक्वायरी कमीशन था जिसमें कोर्ट का फैसला नहीं था बल्कि सिफारिशात थी जिन पर अमल दरामद करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी। मेरी जो भी सिफारिशात थी उन पर मुकम्मल अमल तो दूर की बात, ये रिपोर्ट तो अब नज़रअंदाज ही हो रही है। और दूसरी जानिब बात करेंगे अल जज़ीरा चैनल ने ICC से फिक्सिंग केस के हवाले से कई सवाल पूछ लिए। अल जज़ीरा की जानिब से जारी बयान में तर्जुमान की जानिब से पूछा गया है कि कौंसल बताए कि वो कब से अनिल मुनव्वर को जानते हैं। मई में हमारी दस्तावेजी फिल्म सामने आई, उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया।
क्या मुनव्वर आईसीसी की मैच फिक्सर लिस्ट में मौजूद है? क्या आईसीसी समझता है कि टेस्ट क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग मुमकिन है? गुज़श्ता 5 बरस के दौरान कितने प्लेयर्स को आईसीसी ने फिक्सिंग में मुलविस पाया? ये प्लेयर्स कौन हैं और उन्हें क्या सजा दी गई? मैच फिक्सिंग के पीछे मौजूद मुनज़्ज़िम जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए क्या इक़दाम किए गए? जी नाज़रीन, अब बात करेंगे नजम सेठी की। शाह खर्चियों का इल्ज़ाम, नजम सेठी ने पीसीबी को नोटिस भिजवा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह नजम सेठी ने क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भिजवा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 रोज पहले साबिक चेयरमैन पीसीबी के शाह खर्चियों की तफसीलात जारी की थी। सेठी की जानिब से भिजवाए गए लीगल नोटिस में कहा गया है कि पीसीबी की रिपोर्ट में जानबूझकर मेरी शोहरत को दागदार करने की कोशिश की गई है। लीगल नोटिस में पीसीबी और एहसान मानी से मुआवजत करने, वेबसाइट से अखराजात की तफसीलात को हटाने का मुतालबा किया गया है। बसूरत दीगर हद तक इज्जत का दावा किया जाएगा। लीगल नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि पीएसएल के दौरान 1 करोड़ 41 लाख का जो अलाउंस खाते में दर्ज किया गया वो उन्होंने बिल्कुल वसूल नहीं किया। लीगल नोटिस में यह भी कहा गया है कि बोर्ड ने जो अखराजात का चार्ट जारी किया उसमें जो 2014 से 2017 तक बोर्ड सरबराह को दी जाने वाली मराहत का जिक्र है, उस वक्त तो मैं बोर्ड सरबराह भी नहीं था। नोटिस में कहा गया कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स 2017 में सिफारिश की थी कि नजम सेठी पीएसएल की कामयाबी पर खसूसी अलाउंस के हकदार हैं। मंजूर करदा पीएसएल अलाउंस के सिवा 1 पाई भी वसूल नहीं की। जी नाजरीन, अब बात करेंगे साफ अंडर 15 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल की, जो परसों खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मेज़बान नेपाल का चैलेंज दरपेश होगा। साफ अंडर 15 फुटबॉल चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। लास्ट 4 मुकाबले परसों जुमेरात को खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम को मेज़बान नेपाल का चैलेंज दरपेश होगा। नेपाल में जारी इवेंट इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है और 4 टॉप टीमों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत ने शानदार खेल की बदौलत सेमीफाइनल में जगह बना रखी है। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है और इसने रवायती हरीफ भारत और भूटान को शिकस्त फाश से 2-4 किया है। सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल जुमेरात को खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल और बांग्लादेश का मुकाबला भारत से होगा। वाज़ेह रहे कि 2 टॉप टीमों के दरमियान फाइनल 3 नवंबर को खेला जाएगा। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।